नमस्कार बाल मित्रों। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे इकाई दूसरी ईदगाह के बारे में। ईदगाह का कई पार्ट हमने देख लिया था। ईदगाह के दिन क्या क्या होता है, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, ईदगाह मेले में कौन कौन से लोग गए, मेले कैसे जमे थे, ये सभी बातें हमने देख ली थी अगले लेक्चर में। और अब हम देखेंगे, थोड़ा बाकी रह गया था कि जब सभी लोग मेले में से वापस आते हैं तो सभी के घर वाले लोग उसकी राह देखते थे और सभी बच्चे सामने आ गए थे। और इसमें से कई लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे आए थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन को भिश्ती उसके लात में से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक पहुँच गए। कहा था ना कि अगर तुम्हारा जो खिलौना है हाथ में से गिर जाएगा तो चूरे चूरा हो जाएगा और स्वर्गलोक पहुँचा जाएगी। वैसा ही बना यहाँ। એવું જ પણ થયું કે જે આ લોકો મેળામાંથી આવ્યા અને મોહસિનના હાથમાંથી એમની નાનકડી બહેને પોતાનું જે ખિલોના લઈ આવ્યો તો એ હાથમાં લીધું ભીસતી અને હાથમાંથી પડી ગયો અને ત્યાં ને ત્યાં એ તૂટી ફૂટી ગયો। આગળ જોઈએ આપણે। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। એટલે એના નૂરે જે વકીલ ખરીદ્યો તો એનો તો હાલ કેવો થયો એનાથી વિશેષ છે। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं पाते, इसलिए उसके लिए तो कई मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में खुटिया गाड़ी गई और उन सभी लकड़ी का एक पट्टा रखा गया। उनके पर पटरे पर एक कागज पर बिछाया गया और वकील साहब को राजा भोज की तरह भांति उस सिंहासन के बिराजे और नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। એટલે જે વકીલ સાહેબને લઈ આવ્યા હતા તો વકીલ સાહેબને આપણે ઘરે લઈ આવ્યા તો એને કંઈ જેવી તેવી જગ્યાએ એમને તો બેસાડી ન દેવાય, એટલા માટે દીવારો ઉપર બે એટલે ખૂંટિયા લગાવી, એટલે કે ખીલી લગાવવામાં આવી। એના ઉપર એક પૂઠું મૂકવામાં આવ્યું, એના પર કાગળ બિછાવવામાં આવ્યો, જાણે કે એના માટે સરસ મજાની સ્ટેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું અને એના ઉપર જાણે કે સિંહાસનમાં રાજા ભોજ બેઠા હોય એવી રીતે એને બેસાડવામાં આવ્યા। અને નૂરેને થયું લાવો એના વકીલ સાહેબને એમને તો ગરમી થશે એટલે કંઈક પંખો નાખું, એની માટે વ્યવસ્થા કરું। એટલે નૂરેને તો પંખા શરૂ કર્યા, એટલે કે આ પોતાના હાથમાં એક સરસ મજાનો નાનકડો વીંજણો લઈ અને વકીલ સાહેબને રાખવા લાગ્યા। अदालतों में खस की टकटिया और बिजली के पंखे होते हैं। એટલે અદાલતમાં તો સરસ મજાના ટ્યુબલાઇટ અને પંખા હોય છે। यहाँ क्या मामूली पंखा भी न हो, આપણી ઘરે એક નાનકડો પંખો પણ ન હોય। बांस का पंखा आया और नूरे के हवा करने लगा અને વાંસનો પંખો લાવી અને નૂરે તો હવા લગાવવા માંડ્યો। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक सीधाए और मृत्यु लोक में आ गए। એટલે ઉપર બેઠાવામાં આવ્યા હતા વકીલ સાહેબને, એ પંખો નાખવા ગયા અને કોને ખબર કેમ પંખો એનો વાગી ગયો અને નીચે પડી ગયા, જાણે કે સ્વર્ગલોકમાંથી મૃત્યુલોકમાં આવી ગયા હોય। और उनका माटी का झोला माटी में मिल गया, એટલે માટીનું જે બનાવેલો ખિલોના હતા એ માટીમાં મળી ગયો। फिर बड़े जोर से शोर से मातम हुआ और वकील साहब की हड्डियाँ धुएं में पर डाल दी गई। અને માતમ હોવું એટલે શોક થયો અને બધાએ શોર મચાવી અને ત્યાર પછી એના જે ટુકડા હતા એ માટીમાં ફરીવાર મળી ગયા। હવે આપણે ખરી વાત જોવાની છે हामिद की हालत। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसको आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उनको गोद में उठाकर प्यार करने लगी और सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर यह चौंक उठी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया?
એટલે અહીંયા જેવો હામિદ આવે છે એટલે તરત જ એની અમ્મા ખુશખુશાલ થતી એને ભેટી પડે છે, પોતાની ગોદમાં લઈ લે છે. અને પહેલાં તો એને ચીપિયો દેખાયો નહીં, પણ જોયું હાથમાં તો એને એક ચીપિયો જોયો એટલે તરત જ એ ચોંકી ગઈ અને પૂછવા લાગી કે એ ચિમટા કહાં સે લાયા? મેને મોલ લિયા હૈ. મોલ લિયા એટલે મેં ખરીદી લીધો છે. કે પૈસે છે એટલે કેટલા પૈસામાં? 3 પૈસે દિએ એટલે કે 3 પૈસા આપ્યા. અમીનાને છાતી પીટલી. છાતી પીટલી એટલે ખૂબ દુઃખી થઈ ગઈ, ગદગદિત હો ગઈ. એને એમ થયું કે બસ આ કાંઈ ન મળ્યું અને એટલું દુઃખ થયું એને કે આ મેં 3 પૈસાની અંદર આ ચીપિયો લઈને આવ્યો, બીજું કશું જ ન મળ્યું એટલે એને બહુ દુઃખ થયું. યહ કૈસા બેસમજ લડકા હે કે દોપહર હુઆ કુછ ન ખાયા ન પિયા. કેવો છોકરો કહેવાતું એ, તે બપોર થવા આવ્યું છતાં તે ન કાંઈ ખાધું ન કાંઈ પીધું. सारे मेले में तुझे यह और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? कि तने आखा मेळानी अंदर कशुं ज न मळ्युं कि तू आ चीपियो लईने आ चाल्यो आव्यो. हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने लिया. એટલે નરમાસથી વિવેકથી બોલ્યો કે માં, મને ખબર નહોતી તું મને ગુસ્સે થઈશ, પણ તારી આંગળી દાઝી જતી હતી એટલે હું લઈ આવ્યો. बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया. बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भावना और कितना विवेक है. दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. એટલે પોતે વિચાર કરે છે, એટલું બોલે છે ત્યાં કે મારી માટે આટલું મારો દીકરો કરીને આવ્યો છતાં મને ક્રોધ આવી ગયો. તરત એ સ્નેહમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, એનો ક્રોધ સ્નેહમાં પલટાઈ જાય છે. બચ્ચેને કિતના ત્યાગ એટલે ને વિચાર આવે છે મારા બાળકમાં કેટલો ત્યાગ છે, કેટલી સદ્ભાવના છે અને કેટલો વિવેક છે. ખિલોના લેતે સમય મીઠાઈ ખાતે દેખકર इसका મન કિતના લલચાયા હોગા. બધા છોકરાઓ જ્યારે મીઠાઈ ખાતા હશે, એમને બધી ખરીદી કરતા હશે, રમકડા ખરીદતા હશે, ત્યારે આનું મન કેટલું લલચાયું છે. ઇતના જખ્મ ઇસસે હુઆ કૈસે એટલે એ આટલું બધું એનાથી આટલું બધું એનાથી સહન કેમ થયું છે. ઇતના जब्त से कैसे हुआ होगा. अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हुई जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी. એટલે પછી તો પોતાને આંખોમાં આંસુ આવી ગયા, પોતે આંસુ બહાવતી ગઈ અને પોતાના બાળકને પ્રેમ કરતી ગઈ. તો આવી જ રીતે પોતાની માં ગદગદિત થઈ ગઈ. અને આપણે જોયું કે આ પાઠની અંદર હામિદનું પાત્ર કેટલો એનો સદ્ભાવ છે, કેટલો ત્યાગવૃત્તિ છે, કેટલું સમર્પણ છે અને પોતાના મા વિશે વિચારે છે. પોતાના પેટમાં પણ ખાતો નથી. તો આપણે પણ આવું કંઈક જો બને ત્યારે આપણે પણ સંયમ રાખવો જોઈએ અને હામિદના પાત્રમાંથી આપણે પણ કંઈક આદર્શ લેવો જોઈએ. મુહાવરે દિલ કચોટના, કુછ ન ખાને પીને કા દુઃખ, बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना और संकट से बचाना, गले मिलना, प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना, बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना के मर जाना, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना. ये मुहावरे पक्का करना है, कंठस्थ करना है. और अभ्यास का जो प्रश्न है जो हमें यहाँ से भेजे जाते हैं वही प्रश्न लिखना है. यहाँ आप वर्णन कर सकते हैं जो अपने पाठ अभ्यास किया है. तो हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? क्योंकि हमें मालूम है कि उसके माँ के पास चिमटा नहीं था, उसकी उंगली जल जाती थी और उसे ऐसा लगा कि काम की चीज़ हो जाए और चिमटा होने से माँ बहुत खुश होगी, इसलिए उसने खरीदा. चिमटा खरीदने के लिए कई कारण बताए. उन्होंने बताया कि अगर चिमटा घर पे हो तो कोई देवता मांगने आए तो उसे दे सकते हैं, पकाते समय रोटी उससे ले सकते हैं और चिपिया घर की एक चीज़ का काम हो जाएगा. इस तरह चिपिया खरीदने का कारण बताया. बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया? जब हामिद ने विवेकपूर्ण भाषा में बोला कि अम्मा तुम्हारी उंगली जल जाती थी ना, इसलिए लाया. ऐसा सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया.
अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विचित्र प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें कागज़ में से कहीं बना सकते हैं वैसे ही उसका कुछ रुमाल में से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पैराग्राफ है, पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़िए और उसके आंसर अपने आप से यानी कि पढ़िए और बोलिए, उसमें से ढूंढ निकालिए। ये स्वाध्याय के प्रश्न हैं। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रमज़ान के दिन के मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? दुकानों के कौन कौन से खिलौने हैं? ये सभी प्रश्न आपको भेजा जाएगा। और यहाँ समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। शीतल तो उसका समानार्थी शब्द है ठंडा, प्रसन्न तो खुश, गरीब तो उसका है गरीब तो क्या होगा रंग, अंधकार तो अंधेरा, स्नेह तो प्रेम और पुरानी तो प्राचीन। ये समानार्थी शब्द है। और उसका विरोधी शब्द है शीतल तो उष्ण, प्रसन्न तो नाप्रसन्न, गरीब तो अमीर, अंधकार तो उजाला प्रकाश, स्नेह तो धृणा, पुरानी तो नई। मुहावरे कार्ड देकर वाक्य में प्रयोग। ये कहानी आपको लिखना है। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में दो स्त्रियाँ, आपने आगे कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो ये कहानी भी आपको लिखनी है। और उसका होमवर्क दिया गया है इस कहानी का, तो आप यहाँ मुद्दा पर से कहानी लिख लीजिए। और अगले पीरियड में हम देखेंगे असुर का पाठ। और ये योग्यता विस्तार में प्रेमचंद जी की गुल्ली डंडा, बड़े भाई जैसी कहानियाँ पढ़िए, यानी पतेती, पूर्व पर्युषण, नाताल आदि त्यौहार के बारे में भी पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करें। और महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं उसमें से कुछ लिखिए, निर्देश कीजिए और कक्षा में उसके बारे में चर्चा। कक्षा में तो है ही नहीं, तो आप नोट में और लिख सकते भी हैं और पढ़ भी सकते हैं। प्रेमचंद की कई कृतियाँ हैं, उपन्यास है, नाटक है, यानी अनेक साहित्य उन्हें लिखा है, तो आप इसमें से निकाल कर कोई ना कोई कहानियाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे। ओके, ओके, बाय।